Very good morning to all of you. So let us do some questions from lines and angles. Otherwise, we have revised this chapter earlier also, but I would like to take the difficult questions once again. एक बार फिर से इसके difficult questions को recall करते हैं. Let us start. So the exercise 5.1, it is based on linear pair of angle, adjacent angle, supplementary angle, vertically opposite angle. Can you tell me, Harmeet Singh, when we say that two angles, they are forming linear pair? When their sum is 180, ठीक है. When we say that they are supplementary, two angles are supplementary. When we say, when their sum is 180, we say that are supplementary. When we say that the two angles are complementary, when we say that two angles are complementary, when their sum is 90 degree. Okay, Bishop, vertically opposite angles we have in what kind of lines? कैसी lines के केस में vertically opposite angles होते हैं हमारे पास? नहीं, vertically opposite angles कौन सी lines होनी चाहिए कि हम vertically opposite angles वहां से define करें? वो तो आप, मैं आपसे पूछ रही हूँ lines कैसी होंगी अगर vertically opposite angles है? अवनीत, हरमीत, vertically opposite, intersecting lines. In case of intersecting lines, vertically opposite angles are equal. So and then we done the adjacent pair of angles. Karthik, define what are adjacent angles. Adjacent angles are those angles which have one common arm. That's all, beta. That is AOB and BOC. Write the two angles which are adjacent. पहले सबसे पहले जो angle adjacent है उनको लिख लो. अब इनमें से common arm को ढूंढो. This is the common arm. And then non common arms को देखो. Non common arm is AB. Sorry. Non common arm is OA and OC. And they lie on the either side of the common arm. ठीक है? And moreover, both the angles should have the same vertex. So this exercise is based on all this. We have discussed it earlier. इसलिए फटाफट से मैंने आपको recall करके बता दिया कि कैसे angles जो हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने डील करना है. डस्टर कहाँ है? वो पड़ा पीछे, डस्टर लेके आओ. ठीक है. One vertex, their vertex should be common, and secondly, they should have common arm, and thirdly, the non-common arm should lie on the either side of common arm. Non-common arm, common arm के opposite side पे lie करनी चाहिए, या एक right पे हो एक left पे, same side पे नहीं होनी चाहिए, right? चलिए, let us do some questions based on this. Do 110 and 50 degree form supplementary angles. Do they form supplementary angles? हाँ जी बोलो. Reason? They will not form supplementary angle because when we add these two angles, let us add them, 110 plus 50, we get 160, which is not equal to 180. तो हमारे पास जो आंसर है वो 160 के इक्वल आ रहा है. इस वजह से हम कह सकते हैं that these two angles they will not form the supplementary angle. तो इनसे हमारे पास जो है वो supplementary angles नहीं बन सकते. Why so? Because their sum is not equal to 180 degree. Right? Then the question is, find supplementary of 100 degree. Bishop, how to find supplementary of 100 degree? Bishop, बताओ Bishop, 100 degree का supplementary कैसे find करोगे? 180 minus 100.
एंड दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। किसी भी एंगल का सप्लीमेंट फाइंड करने के लिए उसको हमने 180 में से माइनस कर देना। तो आई एम सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 180, आई एम गेटिंग इट टू बी 80 डिग्री, राइट? देन इफ यू आर हैविंग द क्वेश्चन, नहीं सीधा भी निकाल सकते हैं, एक्स लेने की कोई जरूरत नहीं होती ज्यादा, इसको सीधा भी आप फाइंड कर फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 60 डिग्री। आप बताओ अवनीत, हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 60 डिग्री? हाँ 60 माइनस 90 माइनस 60, 60 माइनस 90 नहीं, बड़े में से छोटा निकालते हैं, इट विल बी 90 माइनस 60, सो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 60 इज 90 minus 60, that is equal to 30 degree. So this is complementary of 60 degree, right? Now see, I will discuss two questions side by side and will tell you what is the difference between their solution. One question is, among two supplementary angles, measure of larger angle is 44 degree more than the smaller. Find the angles. इसी के पैरेलल में एक क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ। एक हमारे पास और भी क्वेश्चन था, मेरे को नजर नहीं आ रहा, ढूंढो जरा, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। हाँ पेज नंबर 95 पे, डिफरेंस ऑफ टू complementary angles is 12 degree. Find the measure of it. This question is based on supplementary angles and this is based on complementary angles. How we will proceed, let me tell you, and what will be the difference in taking the angles that I am telling you. Listen. Among two supplementary angle, measure of larger angle is 44 more than the smaller. That means यहाँ पे दोनों एंगल एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 44 ज्यादा है, ठीक है? लार्जर एंगल इज 44 मोर देन स्मॉलर। हमें नहीं बताया कि उनका डिफरेंस क्या है, उनका सम क्या है, हमें सिर्फ इतना बताया कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 44 ज्यादा है। तो इसका मतलब हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली दोनों एंगल्स को लेट कर लेना चाहिए। लेट द एंगल्स बी, लेट द एंगल्स बी, पहला x तो दूसरा x plus 44 मोर देन स्मॉलर एंगल से 44 ज्यादा, 44 मोर देन smaller angle. So if one angle is x, another will be x plus 44. If one angle is x, another will be x plus 44. Now these are given to be supplementary angle. And what is the property of supplementary angle? Supplementary angles, their sum is 180 degree. So you will write, as their sum is 180, you will write x plus 44 equal to 180 degree. X plus x 2x. So 2x is equal to
180 माइनस 44 प्लस 44 उधर गया, माइनस 44 बन गया, इसको माइनस कर दो, 116 नहीं 126, 136 आएगा माइनस करके, है ना 136. So x is equal to 136 over 268. So you are getting the value of x to be 68. Therefore the angles are, we suppose the angle to be x, that is 68. Second is x plus 44, 68 plus 44, 112. So this is the way. क्योंकि यहाँ पे एंगल्स के बीच में हमें ये नहीं बताया गया कि उनका डिफरेंस क्या है, उनका सम क्या है, हमें सिर्फ ये बताया गया कि एंगल जो है स्मॉलर एंगल इज 44, लार्जर एंगल इज 44 मोर देन स्मॉलर एंगल. सो अकॉर्डिंगली आई एम टेकिंग द एंगल. जो आपका लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 44 ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने इनको क्या कर लिया, लेट कर लिया. अब इधर इस क्वेश्चन में आओ. इस क्वेश्चन में वो कह रहा है that difference of two complementary angles is 12. दो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं और उनका डिफरेंस 12 है. अब एंगल्स को जब हम लेट करेंगे, जब हम एंगल्स को यहाँ पे लेट करेंगे तो हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंगली ही लेट करेंगे, डिफरेंस के अकॉर्डिंगली लेट नहीं करेंगे. यहाँ पे हमने एंगल्स को 44 मोर देन एंड ऑल दैट के अकॉर्डिंगली लेट किया. यहाँ पे मैं डिफरेंस के अकॉर्डिंगली एंगल्स को लेट नहीं कर रही, आई एम सपोजिंग देम अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट. वहां पे हमने क्या किया, सम के अकॉर्डिंगली लेट किया और बाद में सप्लीमेंट्री लगाया. अब मैं क्या करने लगी हूँ, डिफरेंस के अकॉर्डिंगली लेट करने लगी हूँ और बाद में नहीं, अब मैं क्या करने लगी हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंगली लेट करने लगी हूँ एंड देन डिफरेंस लगा रही हूँ. उल्टा है, इसमें पहले सम के अकॉर्डिंगली लेट करोगे एंड बाद में सप्लीमेंट्री लगाओगे. उसमें पहले कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंगली लेट करके बाद में डिफरेंस लगाओ. लेट द एंगल्स बी x, दूसरा 90 माइनस x. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यही होते हैं, अगर एक एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 90 माइनस x. अब दोनों का डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है, 12. फर्स्ट एंगल माइनस द सेकंड एंगल, डिफरेंस इज 12. देखो दोनों सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस मैंने किया. इस सॉल्यूशन में मैंने सप्लीमेंट्री बाद में यूज किया, इस सॉल्यूशन में मैंने कॉम्प्लीमेंट्री पहले यूज कर लिया. इसमें मैंने दोनों का सप्लीमेंट्री होना बाद में यूज किया और दोनों की कंडीशन को के अकॉर्डिंगली एंगल को लेट कर लिया. इसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंगली एंगल को लेट किया और जो कंडीशन है उसको बाद में यूज किया. अब माइनस को अंदर ले जाओ, दिस बिकम्स माइनस 90 माइनस माइनस प्लस x. जैसे ही माइनस अंदर गया साइन गेट्स चेंज. नाउ दिस इज x एंड x, x स्क्वायर, x एंड x स्क्वायर. हरमीत सिंह, x plus x square 2x, because when we add powers नहीं पड़ती, पावर मल्टीप्लाई करने पे पड़ती है. सो x plus x क्या हो जाएगा, 2x. minus 90 equal to 12. Now this minus 90 will shift on the another side. You will be having 2x is equal to 12 plus 9. So 2x is equal to 2, 110. So x is 102 over 2, 51. तो हमने जो एंगल्स लेट किए थे, let us find them. First we are letting x, that is 51. Second is 90 minus x, 90 minus 51. 51 and 39 is the answer. सप्लीमेंट्री में कंडीशन के अकॉर्डिंगली लेट करके सप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट बाद में यूज किया और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंगली लेट करके डिफरेंस वाला रूल बाद में यूज किया. ये दोनों के सोल्यूशन में जो है वो हम डिफरेंस देख रहे हैं. इज इट ओके, क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट.
Look at page number 102. Question number 4. Find the angle which is complement of itself, and साथ ही fifth दिया हुआ है find the angle which is supplement of itself. Find the angle which is complement of itself. And contrary, on the other hand, the next question is find the angle which is supplement of itself. ऐसा एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है वो फाइंड करो, और ऐसा एंगल जो अपने सप्लीमेंट्री के इक्वल है वो फाइंड करो। हम सबसे पहले एंगल को अगर x सेलेक्ट करें तो इसके अकॉर्डिंगली इसका कॉम्प्लीमेंट ऋषभ क्या होगा? व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x? नहीं, अगर मैं आपको बोलूं 60 का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो आप कैसे निकालोगे? 60 का कॉम्प्लीमेंट, एंगल 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 60, तो यहाँ पे भी तो वही करना है, x का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x। तो हमें कंडीशन क्या दी हुई है? दैट एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द एंगल इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। This condition is given to us. Now we will solve it. Minus x comes on another side, become plus x. 2x is equal to 90. X is 90 by 2, comes out to be 45. Angle is equal to its complement. 1 mark में mostly आ जाता होता है MCQs में. Which of the following angle is complement of itself? 60, 45, 90, 80. Which is the correct option? 45 degree. 45 degree is the angle which is complement of itself. Now supplement की बात करें. Find the angle which is equal to its supplement. So let the angle be x. अवनीत x का supplement क्या होगा? अवनीत, what will be supplement of x? 180 माइनस एक्स। और हमें कंडीशन क्या गिवन है? एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। हमें कंडीशन गिवन है कि एंगल अपने सप्लीमेंट के एंगल जो है वो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 180 minus x. Now minus x come on this side will become plus x. X plus x is 180. So 2x is equal to 180. So the angle which is equal to its supplementary will be 90 degree. सिक्स्थ क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी था कि अगर हमारे पास 1 और 2 दो एंगल्स, तो 2 एंगल्स हैं, एक अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा, एक अगर डिक्रीज होगा तो दूसरा क्या। नेचुरली सीधी सी बात है, एक लाइन पे 2 एंगल्स हैं, 2 एंगल्स आर देयर ऑन ए लाइन। अगर मैं इसको कम करती जाऊंगी तो दूसरा इंक्रीज होता जाएगा। ये लाइन है, इसको मैं इधर इधर करती जाऊंगी तो दूसरा अपने आप ही बढ़ता जाएगा, और अगर एक को बढ़ाती जाऊंगी तो दूसरा कम होता जाएगा। With increase in one angle, the second will be decrease, and with decrease in one angle, second angle will increase. Right? Next.
अगर कोई एंगल 45 डिग्री से बड़ा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 45 डिग्री के इक्वल होगा, बड़ा होगा या उससे छोटा होगा। आप कोई एग्जांपल ले लो, 45 डिग्री से बड़ा कोई एंगल लो, आपने 60 डिग्री लिया, आप उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन 45. So if an angle is greater than 45, then its complementary will be less than 45. Look at the next question, question number 9. Ninth question is, there are two intersecting lines. One is AB, another is CD. Two intersecting lines. And there is a ray OE. OE is a ray. There are so many angles here. 1, 2, 3, 4, and then 5. Mark it to be the point. Mark it to be point O point पे है. तो क्वेश्चन क्या हमारा? He says, is angle 1 adjacent to angle 2? क्या angle 1 and 2 adjacent angles हैं? देखो, this is angle 1, this is angle 2. They have the same vertex. आप पता क्या किया करो? जैसे आपको 1 है AOC और 2 है COE. ये लिख लिया पेपर में. क्या हुआ? एक एंगल है AOC, दूसरा एंगल है COE. ठीक है, आपने लिख लिया. अब आप इसमें से कॉमन वर्टेक्स देखो. वर्टेक्स कॉमन है, बिल्कुल है. कॉमन आर्म ढूंढ लो. और जो नॉन कॉमन आर्म है AC एंड CE, सॉरी, नॉन कॉमन आर्म इज AO and OE. Just check they lie on the opposite side of the common arm or not. OA and OE, they lie on the opposite side of the common arm. Therefore 1 and 2, they are forming pair of adjacent angles. 1 and 2 adjacent हो गए. नहीं, आप वैसे लिख दो यस या. अगर तो है तो यस लिख देना, अगर नहीं है तो रीजन बता. ठीक है, यस में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, बट नो में यू हैव टू टेल द रीजन. चलिए, सेकंड, इज AOC adjacent to AOE? AOC AOE, देखिए जरा, AOC AOE, वर्टेक्स कॉमन है, कॉमन आर्म को मार्क कर दो. एंड नॉन कॉमन आर्म इसकी है OC और इसकी है OE. देखो जरा नॉन कॉमन आर्म को कहाँ लाई कर रही है. आपकी कॉमन आर्म है AO. देखो बेटे, लुक एट द बोर्ड. दिस इज द कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म आर OC एंड OE. वो तो सेम साइड पे लाई करी जा रही है. कॉमन आर्म के ऑपोजिट आर्म साइड पे लाई नहीं कर रही. एक लेफ्ट पे होनी चाहिए थी, एक राइट पे होनी चाहिए थी, बट दोनों ही राइट पे हैं. तो इसका मतलब AOC and AOE are not adjacent angles. वो adjacant angles. Next, do COE and EOD forming linear pair? COE and EOD. COE, EOD. They are sitting on a straight line. और जो स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बैठे होते हैं उनका सम हमेशा 180 होता है. दैट मींस दे डू फॉर्म लीनियर पेयर. वो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, हर कंडीशन में करेंगे, बिकॉज दे आर सिटिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन. दे आर मेकिंग देयर सम विल बी 180, so they are forming linear pair. Next, are BOD and DOA supplementary? BOD and DOA, again they are sitting on the straight line. BOD and DOA भी straight line पे sitting है, तो इसका मतलब दोनों का सम क्या होगा? 180. Then definitely they are going to be supplementary. Next, indicate the pair of हाँ जी, अच्छा ओके, एक मिनट वेट.
अब दो पार्ट्स हमारे रह गए थे, मैंने पहले फिगर रख कर दी। अगला पार्ट देखो क्या कह रहा है, एंगल 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4। पहले तो दोनों को फिगर में देखने की कोशिश करो। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 4. These are the intersecting lines, and I told you in case of intersecting line, vertically opposite angles are always equal, so they are forming pair of vertically opposite angles. What is the vertically opposite angle to 5? 5 के vertically opposite कौन सा है? एंगल 2 एंड एंगल 3 नहीं लिख के आना पेपर में। एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये पूरा एंगल 2 प्लस 3। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। चलिए नेक्स्ट देखो, इन द गिवन फिगर this is angle 1, this is 2, 3, 4 and 5. In the given figure, first part is write pair of vertically opposite angle. Pair of vertically opposite angle आपने इस फिगर में लिखना है। हाँ जी हरमीत सिंह बताओ। वेरी गुड, पहले तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। दिस इज एंगल 5, दिस इज 2 plus 3, they are equal. Then angle 1 is equal to angle 4. They are also vertically opposite angle. ठीक है, they are forming the pair of vertically opposite angle. Next is linear pair. Linear pair के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है। यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस है, एक ये, नीचे वाले तो सप्लीमेंट्री हो गए क्योंकि 2 से ज्यादा है। हमें लीनियर पेयर काउंट करना है। क्या होगा लीनियर पेयर? एंगल 4 एंड एंगल 5, 5 and angle 1. They are forming pair of linear pair of angles. They are forming linear pair of angles. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जैसे हरमीत सिंह पूछा हुआ है, रीजन भी देना है, तो यहाँ पे आपने जहां रीजन पूछा वहां रीजन देखना है। ठीक है, सो आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 11। Eleventh question is, following figure, one adjacent to 2 or not, give reason. In the following figure, one is adjacent to 2 or not, give the reason. हम इनका नाम रखते हैं। This is AOB, this is C. एंगल 1 का नेम क्या बना? AOB। जहां पे एंगल होता है वो लेटर सेंटर में आना चाहिए, और इधर से नेम क्या बनेगा एंगल 2 का? OBC, बी सेंटर में आना चाहिए। एंगल 1 की अगर मैं नेम करूं तो एंगल नेमिंग के अकॉर्डिंगली एंगल 1 की वर्टेक्स क्या बन रही है? O। एंगल 1 की वर्टेक्स बन रही है O। एंड व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल 2? B. So you will say, as here vertex is not the same, so we will say that they are not adjacent angles. जब vertex ही सेम नहीं है तो adjacent angles बनने का सवाल ही नहीं होता। They are not adjacent. Let us do 12th question, first part. See, there are two lines. They are intersecting lines, and angles are given like this: x, y, 50 and z. These are the angles, and we want to see that we want to find actually the values of x, y, z. अब आप देखो x जो है वो 50 के opposite है। This is 55. Okay. x जो है वो 55 के opposite है, तो they are forming vertically opposite angle. So you will write x is equal to 55, vertically opposite है. What is y and 55? Y and 55, they are sitting on a straight line. They are forming linear pair. So you will write 180 linear pair. Y is equal to 180 minus 55.
This is 125. And when you are having y to be 125, what you will write to be z? Z is also 125. Reason being vertically opposite angles. Z भी 125 होगा. आपने क्या किया? तो कोई बात नहीं, वैल्यू निकाल के दिखा दो. मैंने भी तो वैल्यू निकाल ली है. मैंने भी निकाल के लिखा, मैं वर्बली थोड़ा लिख रही हूँ. Second part you will do yourself. Let us do question number 14. Question number 14. We are having this figure. This line is BD. And the another line is AC. And this is E. So we have to answer the certain types of angles. First type is obtuse vertically opposite angle. सबसे पहले तो आप vertically opposite angles में हमेशा intercepting line होगी. Obtuse दो पेयर बन रहे हैं, ये तो acute है दोनों, माने आपको 90 से कम लग रहे हैं. This is the pair which are forming obtuse vertically opposite, यानी कि 90 से ज्यादा भी है, obtuse भी है and vertically opposite भी है. तो कौन सा पेयर बना? AOD and BOC. This is obtuse vertically opposite angles. Second is adjacent complementary angle. Adjacent भी हो और complementary भी हो. इस केस में आप सबसे पहले complementary को मार्क कर लो. आपका complementary means 90 डिग्री. ये बना complementary. इस कॉम्प्लीमेंट्री के साइन के अंदर देखो क्या आपको दो एंगल्स मिल रहे हैं. अगर मिल गए तो वो एडजेसेंट ही होंगे. कौन कौन से? BOA, जहां पे खत्म वहीं से शुरू. AOE, they are lying under 90 degree, so they are adjacent complementary angles. BOA, AOE, they are forming adjacent complementary. इक्वल सप्लीमेंट्री. इक्वल सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री का सम 180 होता है. इक्वल सप्लीमेंट्री मींस दोनों 90-90 हो. तो ये आपके पास पड़ा हुआ है 190. दिस इज अनदर 90. BOE, EOD, दे आर इक्वल सप्लीमेंट्री. दे आर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स. फोर्थ पार्ट इज अनइक्वल सप्लीमेंट्री. नीचे देखो ये वाली लाइन पे BOC एंड COD, ये सप्लीमेंट्री है क्योंकि लाइन पे बैठे हैं. सम 180 होगा बट अनइक्वल है. एक एक्यूज है, एक एक्यूट है, अनइक्वल हो गए. सो अनइक्वल सप्लीमेंट्री आर BOC एंड COD. These are the unequal supplementary angles. Next is adjacent angles that do not form a linear pair. So we'll continue tomorrow. कल करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज.